ભારતીય જ્ઞાન પરંપરામાં પ્રમુખ વિભાવનાઓ એટલે ભારતીય વિચારનું વૈશિષ્ટ્ય અથવા ભારતીય જીવન પદ્ધતિ. આજે આપણા જે પૂર્વના બે વક્તાઓએ વાત કરી કે ભારતનો વિચાર વિશ્વના અન્ય વિચારોની સમક્ષ એક વૈશિષ્ટ્ય ધરાવે છે. તો ભારતીય વિચાર વૈશિષ્ટ્ય ધરાવે છે, અર્થાત એનું વૈશિષ્ટ્ય શું છે? તો ભારતીય જ્ઞાન પરંપરામાં, ભારતીય દર્શનમાં એવું કંઈક છે જે અન્યત્ર નથી મળતું. તો એવી પ્રમુખ વિભાવનાઓ ભારતીય જ્ઞાન પરંપરાની કઈ છે, એ વિષય પર આપણી વચ્ચે ઉદ્બોધન આપવા માટે જે વક્તા આવ્યા છે એમનો હું પરિચય ફરીથી કરાવી દઉં. એટલે આપણી વચ્ચે આચાર્ય દીપક કોઈરાલા, જે આજનું આપણું આ સત્ર લેવાના છે, તેઓ પધાર્યા છે. ભારતભરમાં આપણા મનમાં એવું હશે કે ગુરુકુલ પરંપરા પ્રાચીન પરંપરા હતી, પણ તમને સૌને, મને પણ જ્યારે ખબર પડી આશ્ચર્ય થયું હતું કે ભારતમાં આજે પણ પ્રાચીન પરંપરા મુજબ ચાલતા 1000 કરતાં વધારે ગુરુકુલો છે. અને આવા જ ગુરુકુલો ભારતની બહાર પણ છે. કંબોડિયા, ઇન્ડોનેશિયાથી માંડીને બેલ્જિયમ સુધી આવા ગુરુકુલો ચાલે છે, જ્યાં પરંપરાગત શિક્ષણ અપાય છે. તો ભારતભરના આ ગુરુકુલોના સમન્વયનું જેવો કાર્ય જોઈએ છે, એવા વક્તા તરીકે આપણને જે ઉપલબ્ધ આજે થયા છે એવા માનનીય આચાર્ય દીપકજી કોઈરાલાજીને હું મંચ પર આવવા વિનંતી કરું છું. તેમની સાથે આના પછીનું જે સત્ર છે, ભારતીય જ્ઞાન પરંપરામાં વિજ્ઞાન, એમના વક્તા તરીકે જે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે એવા પ્રોફેસર મોહનજી રાઘવનજી, એમને પણ વિનંતી કરું છું કે મંચ પર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરે. જે તૃતીય સત્રના વક્તા છે એવા દીપજી, એ ગુરુકુલ પ્રકલ્પના સમન્વયનું કાર્ય પણ જુએ છે, ભારત અને ભારતની બહારના પણ. અને તેઓની સાથે જ ભારતીય શિક્ષણ મંડળ, જે શિક્ષણની પેડોગોજી પણ કાર્ય કરે છે, એવા ભારતીય શિક્ષણ મંડળના પશ્ચિમ ક્ષેત્રના, જે રાજકીય દૃષ્ટિએ ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર અને ગોવા એવું પશ્ચિમ ક્ષેત્ર છે, એના તે પાલક અધિકારી છે. તો એમને હું વિનંતી કરું છું કે ભારતીય જ્ઞાન પરંપરામાં પ્રમુખ વિભાવનાઓ આ વિષય પર અમને ઉદ્બોધિત કરીને કૃતાર્થ કરે. માનનીય દીપજી. વાગર્થાવિવ સંપૃક્તો વાગર્થ પ્રતિપત્તયે જગતઃ પિતરૌ વંદે પાર્વતી પરમેશ્વરૌ. ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુર્દેવો મહેશ્વરઃ ગુરુઃ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. શૈશવે હસ્તવિદ્યાનાં યૌવને વિશેષણાં વાર્ધક્યે મુનિવૃત્તેનાં યોગેનાંતે તનુત્યજામ. मंच में विराजमान हमारे चतुर्थ सत्र के जो मार्गदर्शक हैं आचार्य मोहन जी, जिस संस्था के माध्यम से छत्र छाया में आज का यह कार्यक्रम हम आनंद ले रहे हैं चर्चा सत्र में, इसे हिंदू अध्ययन प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय युवा और विद्वान ऐसे बालाजी, और इस मंच के सम्मुख उपस्थित मेरे आयु से भी अधिक जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में तपस्या कर रहे हैं, ऐसे शिक्षा क्षेत्र से पधारे हुए शिक्षाविद, प्रोफेसर, आचार्य, और मेरी आयु से कम आयु वाले जिन्हें मैं अनुज के रूप में संबोधन कर पाऊँ, ऐसे को क्रमशः सादर नमस्कार, प्रणाम और वेदोक्त आशीर्वाद. आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में प्रातःकाल से ही सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं. तो इसी क्रम में आगे हम भारतीय विभावना, ऐसा विषय मुझे आपके साथ संवाद करने के लिए दिया गया है. सर्वप्रथम भारतीय विभावना
यदि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से कौन सा सूत्र लगा, क्या प्रत्यय हुआ, ये ज़्यादा आगे बताऊंगा तो शायद आपसे विषांतर हो जाएगा। परंतु व्याकरण की दृष्टि से विभावना शब्द शायद आज के सत्र में कितना बैठ पाएगा। विभावना एक विशेष परिस्थिति में ये अलंकार है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में विभावना जैसे कि विशेष परिस्थिति में जो नहीं है उसका चिंतन करके जो अलंकार स्थापित करना, शायद उसको विभावना शास्त्रीय हिसाब से कहेंगे। परंतु यदि इसको ठीक से आज जिस सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं तो उसको भारतीय अवधारणा भी कह सकते हैं, संकल्पना परिकल्पना भी कहना उचित होगा, ऐसा मुझे लगता है। परंतु जिन्होंने भी मुझे विषय दिया है, शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो शब्दों को न लेकर के हम उसके भावार्थ में जाते हैं, क्योंकि कई बार प्रांत के अनुसार भाषाओं में भी थोड़ा सा अंतर होता है। एक छोटा उदाहरण दूं। अपनी भारतीय ज्ञान परंपरा की उत्कृष्ट एक व्यवस्था है कथानक, कथा और उदाहरणों के माध्यम से विषय प्रतिपादन करना। इसलिए कई स्थानों पर ऐसे उदाहरण और कथाएं आएंगी। तो जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति को शिक्षा देना, इसको शिक्षा देना है, और वहीं यदि हम गुजराती भाषा में उसका उपयोग करते हैं कि हमने शिक्षा આપી છે, શિક્ષાના પાત્ર છે, આ ભાઈ શિક્ષાનો પાત્ર છે, તો એનો અર્થ બદલાઈ જાય। શિક્ષા એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ કે આ ભાઈ શિક્ષાનો પાત્ર છે એટલે દંડનો પાત્ર એવું આપણે સામાન્ય અર્થમાં સમજીએ છીએ। परंतु ये જ वस्तु यदि આપણે हिंदीમાં कहिए ये शिक्षा के पात्र हैं, इन्हें शिक्षा देना चाहिए, तो उसको ज्ञान देना चाहिए, ये अर्थ में लिया जाता है। फिर भी आज हम भारतीय ज्ञान परंपरा की वैविध्यता के विषय में सुबह से चर्चा कर रहे हैं, तो यह भी स्पष्टता होना शायद एक चर्चा सत्र का भी, ये इस कॉन्फ्रेंस का, ये कार्यक्रम का भी एक विषय हो सकता है। इसलिए भारतीय संकल्पना, भारतीय अवधारणा या भारतीय विभावना, આપણે ભાવાર્થમાં જઈએ તો પણ આટલી આપણી સ્પષ્ટતા રાખીએ તો વધારે સારું। अब भारतीय प्रमुख क्या अवधारणाएं हैं? जब हिंदुत्व, भारत, भारतीय संस्कृति के विषय में हम जब चर्चा करते हैं, निश्चित रूप से कई चीजें अपने आप उभर के आते हैं कि भारतीय अवधारणा, भारतीय कल्पना यानी पुनर्जन्म, हिंदू, हिड़ धातु, उसमें हिंदू, कई बार डिबेट होता है टीवी में कि हिंदू तो फलाने मुगलों ने हमको गाली दिया है और वो हिंदू तो कोई शास्त्रों में है ही नहीं। अब वो ऐसा लोग कहते हैं जिन्होंने कोई शास्त्र ही नहीं पढ़ा है, ये बड़ी विडंबना है। तो हिंदू शब्द यदि अगर उसके कई कि हिमालय के दक्षिण भाग में फलाना समुद्र से उत्तर से वो श्लोक लिखा है वहां भारत माता के चित्र के नीचे, उसके अवधान सिंधु उच्यते, उसका अपभ्रंश हिंदू उच्यते इति अपि वक्तुं शक्यते। परंतु यदि व्याकरण की दृष्टि से भी अगर चिंतन किया जाए तो हिंदू और हिड़ धातु से बनता है। हिड़ यानी हेड़ना, આપણે હેડીને જઈએ, कही છે ना, हेड़વું। तो ये आत्मा एक शरीर का त्याग करके जब दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, दूसरे शरीर में जाता है और हिड़ता है, इसलिए हम हिंदू हैं। और कई ऐसे स्मृति ग्रंथ पुराणों में भी कई जगह ऐसे आपको प्रमाण मिलेंगे हिंदू शब्द के। हिंदू सभ्यता, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, कई बार अच्छे अच्छे वक्ता मंच में हिंदू को बोलना थोड़ा संकुचित अनुभव करते हैं, तो भारतीय आर्य कहो, परंतु हिंदू कहने में भी कोई अशास्त्रीय नहीं है, किसी का दिया हुआ गाली नहीं है, ये हमें स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र सम्मत शब्द है। इसलिए हमें
जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में अध्ययन अध्यापन से जुड़ने वाले हैं अथवा जुड़ रहे हैं, तो हमें बेसिक जो फाउंडेशन, जो हमारा एक प्रथम स्तर है, वो क्लैरिटी, स्पष्टता होना आवश्यक है। तो सबसे पहले कई बार हिंदू स्टडी देश भर में एक अभियान जैसा चल रहा है, तो बहुत सारे विद्वानों के बीच एक बड़ा चर्चा का विषय भी बन रहा है। हिंदू अध्ययन केंद्र, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा, यह विषय में क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, क्या विषय होने चाहिए। तो कई लोग विषय रखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, वेस्टर्न फिलोसफी होना चाहिए इत्यादि। क्यों? उसका तर्क आता है कि रोजगार कैसे मिलेगा। हिंदू अध्ययन केंद्र में वैदिक फिलोसफी, भारतीय चिंतन, भारतीय मनुष्यों को पढ़ने के बाद आपको रोजगार कैसे मिलेगा? ये सबसे बड़ा एक कुतर्क हमारे समक्ष रखा जाता है। इसको हो सकता है मैं आचार्य होने के नाते थोड़ा अंतिमवादी लग सकता हूं, परंतु ये सनातन सत्य है। हिंदू अध्ययन केंद्र कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने के लिए नहीं है। उसका मर्म, उसका तत्व हमें समझना है, उसको रोजगार से कतई नहीं जोड़ना चाहिए। सर्वप्रथम रोजगार की दृष्टि से जो तर्क देते हैं, उन्हें भी हमारा यह प्रश्न है, आप आर्ट्स पढ़ा के या तमाम साइंस इत्यादि कोई भी विषय पढ़ाते कितना रोजगार दे पा रहे हैं? आज इंजीनियर लोगों की क्या स्थिति है? रोजगार की समस्या वहां भी है। सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करना यानी पढ़ना, भारतीय मनुष्यों का यह चिंतन था, अध्ययन करना यानी ज्ञान के लिए। पढ़ना किस लिए? ज्ञानी बनने के लिए, पैकेज के लिए नहीं। वो कला है। हमारे यहां पढ़ने की अद्भुत भारतीय ज्ञान परंपरा में एक अद्भुत उसकी व्यवस्था रही है। अध्ययन के कई पद्धति रहे। विद्या अध्ययन करना, कला, कुशलता, ये मुख्य 3 स्टेप हैं उसके। तो विद्या कैसे सीखी जाती है? तो विद्या एक गुरु से शिक्षार्थी श्रवण करता है, सुन करके सीखता है, सुन करके सीखता है। जब फिर वो कुशलता में जाता है, जो कुशलता के लिए एक कोई प्रयोग करता है, उस प्रयोग को बार बार कोई कर रहा है उसको देखता है और खुद भी प्रयास करता है, और उस सीखने वाले को उसको कुशलता बोलते हैं। और जिसको हम रोजगार से जोड़ते हैं, जो कला है, वो सीख कर भी बार बार प्रयास करने से जो सीखा जाता है उसको कला कहा जाता है। मात्र कला या कुशलता से व्यक्ति ज्ञानी बन सकता है, वो शिक्षित माना जा सकता है? ये एक अपने आप में बड़ा प्रश्न है। कला और कुशलता सीखने के बाद उसके पास यदि विद्या नहीं है, शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, तो उसका उपयोग क्या हो सकता है? जिसको विवेक नहीं है, जिसकी मानसिकता विपरीत है, वो नास्तिक है, ऐसे लोगों ने यदि अणुबम बनाने की कला सीख ली, उसमें कुशलता प्राप्त कर लिया, तो क्या वो अणुबम का उपयोग मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है? इसलिए विद्या प्राप्त करना परम आवश्यक है। विद्या सीखने के बाद, गुरु के पास विद्या अर्जन करने के बाद, वह ज्ञानी बनने के बाद जीवन में वो निर्णय कर पाता है कि सही क्या और गलत क्या। कई बार पूछते हैं, गुरुकुल में देश विदेश से विजिटर्स आते हैं, देखते हैं। मैं कई देश में, मतलब करेक्ट करूं, 1000 नहीं, अभी 10,000 गुरुकुल भारतवर्ष में है। 10 उन्होंने कम बोला, परिचय में छूट गया होगा। 10,000 गुरुकुल आज भी भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर चल रहे हैं। तो जब पूछते हैं कि गुरुकुल में शिक्षार्थी को आप क्या बनाना चाहते हैं, क्या बनाएंगे आप? क्या उसको साइंटिस्ट बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे? तो हम उन्हें उत्तर देते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे पहले हम उसको विद्या सिखाते हैं, तो उसको ज्ञानी बनाएंगे। अपने जीवन में, अपने महत्वपूर्ण इस जीवन यात्रा में वो सही और गलत का
अंतर कर सके, उसको पता हो सके क्या मुझे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, इसका विवेक उसके अंदर आए, उसके बाद ही हम कला और कुशलता में उसको आगे प्रेरित करते हैं, फिर हम उसको डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं। ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा के हिसाब से हम अपने महाविद्यालयों में, कॉलेज में जो हम सिखाएंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा अथवा हिंदू अध्ययन केंद्र, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो हमें ये बच्चों को स्पष्टता कराना है, बेटा जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये जीवन में निर्णय कर सको। ऐसे निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर विकसित हुआ तो आप अवश्य ही ज्ञानी बनेंगे। और इंजीनियरिंग और सीए करने के बाद, डॉक्टरी पढ़ने के बाद सुसाइड करने की आपकी स्थिति नहीं आएगी। ये हम सभी आचार्यों को स्पष्ट होना आवश्यक है। इसलिए हिंदू अध्ययन केंद्र अथवा भारतीय अवधारणा शिक्षा को लेकर के ये स्पष्ट हो कि विद्या, कला और कुशलता का क्या अंतर है। आप फिर उसको कंप्यूटर साइंस सिखाइए ना। इसलिए स्पष्टता आज की शिक्षा से हम कह रहे हैं कि चाहे मैकॉले आज़ादी के बाद अथवा गुलामी के काल से जो शिक्षा हमारे युवा ले रहे हैं, उसमें हम अधिकांश लोगों को ये पाते हैं कि वो राष्ट्र से प्रेम नहीं करता। क्यों? राष्ट्र के लिए प्रश्न उठाता है कि इस देश ने हमको क्या दिया, भ्रष्टाचार दिया, ये दिया, इसलिए हम अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं। सुबह हमारे मार्गदर्शक ने जो बताया कि 2500 लोग प्रतिदिन का एवरेज आ रहा है कि लोग कनाडा की फ्लाइट में जा रहे हैं। क्यों? तो उसका जवाबदार शिक्षा है, आज की शिक्षा है। यदि ये शिक्षा ने, यदि इतना कला आज शिक्षा क्षेत्र में, हृदय की शिक्षा, भावनात्मक संवेदनात्मक शिक्षा तो कहीं दूर रह गया, केवल स्किल, कला और तर्क युक्त हमने एक शिक्षित लोगों का फौज खड़ा कर दिया, जिससे इतना तर्क कर रहे हैं, अपने राष्ट्र, अपनी परंपरा के प्रति गौरव नहीं है, गर्व नहीं है। वो यहां तक प्रश्न करने की स्थिति में है, अपनी मां को प्रश्न करते हैं, हे मां, तूने अपने पिता के रूप में जिसका मुझे परिचय करा रही है वो मेरा ही पिता है, उसका क्या प्रमाण है? जब एक बालक अपनी मां से यह प्रश्न करेगा तो आपके पास क्या उत्तर है? आज तो कह भी सकते हैं कि डीएनए करा लो, लेकिन क्या यह तर्क है? आज के युवाओं को, आज के शिक्षित लोगों को यह प्रश्न कैसे करना, यह भी विवेक नहीं है। तर्क नहीं, वो कुतर्क की ओर जा रहे हैं। इसलिए भारत के आज के आधुनिक मनीषियों को लगा कि इस देश में आज हिंदू अध्ययन केंद्र की स्थापना की आवश्यकता पड़ रही है। भारत अध्ययन केंद्र एक मेन कोर्स में लाने के लिए मजबूर है। जो हमारे परिवार में अपने कुटुंब से दादा, दादी, परदादा, पिता, मामा, चाचा, मासी सबसे सीखने वाली चीजों को आज हमको क्लासरूम में लाने की स्थिति नौबत आई है। इसमें जवाबदार कौन? पढ़ाते हैं कि ये गुरुत्व आकर्षण खोज न्यूटन ने किया। उनको पता है कि न्यूटन तो 350 साल पहले, 500 साल पहले हुआ। उससे पहले सफरजन ऊपर जाते थे क्या? न्यूटन पैदा होने से पहले ऊपर ही नहीं जाते थे ना। तो उससे पहले तो और किसी ने भी खोज किया होगा, भास्कराचार्य जी ने किया होगा। लेकिन शिक्षक अपनी लाचारी बताते हैं, हे आचार्य, हम जब बच्चों को ये सिखाएंगे भास्कराचार्य जी के विषय में तो उनको मार्क्स नहीं मिलेगा, फेल हो जाएंगे, क्योंकि सिलेबस में न्यूटन दिया है। तो उस समय शिक्षक की इतनी शिक्षा को हम चाणक्य की उपमा देते हैं। प्रलय और निर्माण जिसके गोद में पलते हैं वह शिक्षक है, वह आचार्य है। तो आचार्य इतना स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता है। वो बच्चे को कह सकता है, बालक तुम्हें परीक्षा में लिखने के लिए न्यूटन अवश्य समझना, परंतु वास्तविक भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुसार भास्कराचार्य जी ने उसकी खोज ही जब न्यूटन का दादा भी पैदा नहीं हुआ था तब से गुरुत्वाकर्षण की खोज हो चुकी है। तो उसके मन में तो स्पष्टता रहेगी ना, नहीं इसकी खोज, और वो रिसर्च करेगा बाद में। इतना तो शायद, इतना का अगर शिक्षक कोई बालक को बताएगा तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं बैठेगी। और आज तो देश में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए कुछ बोलेंगे और इंक्वायरी हो जाए।
होगी तो देख लेंगे। तो हमें भी ये क्लियरिटी होना चाहिए, ये स्पष्टता होनी चाहिए। इसलिए और आज हम खास करके हो सकता है ये विषय पुनर्जन्म, कई लोग पूछते हैं पुनर्जन्म भारत की अवधारणा निश्चित रूप से है, ये क्या कर्मकांड सिखाने आए हैं क्या? ऐसा भी लग सकता है, प्रश्न आ सकता है। कई लोग व्यक्तिगत पूछते हैं। पुनर्जन्म हमारी भारतीय संस्कृति की एक मुख्य अवधारणा है। भारतीय संस्कृति, पहले तो संस्कृति क्या है वह भी समझना होगा। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति, हमारे भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो हम मन बुद्धि चित्त से सही सोचकर सही क्रिया करें, वह संस्कृति है। संस्कृति हमारा सॉफ्टवेयर है और बाह्य आचरण, उस संस्कृति का जो आचरण पक्ष है, जो व्यवहार पक्ष है, वह है सभ्यता, आपकी वेशभूषा, आपका आचरण। सभ्यता और संस्कृति दोनों मिलाते हैं तभी वो पूर्ण रूप में भारतीय अवधारणा में संस्कृति वास्तविक अर्थ में समझ पाएंगे। ये दोनों में से एक की भी कमी होगी तो हमारे यहाँ उस चीज का स्वीकार्यता नहीं है। केवल वेशभूषा आचरण में ही दिखे, परंतु मन चित्त बुद्धि से यदि वह संस्कृति उसके अंदर भारतीय संस्कृति नहीं है तो उसका भी स्वीकार नहीं है। केवल संस्कृति है लेकिन आचारात् शिक्षते आचार्य, जो आचार्य आचरण से सिखाता है वह आचार्य है। इसलिए सभ्यता भी महती आवश्यक है। इसलिए संस्कृति हमारी सॉफ्टवेयर है, सभ्यता हमारा हार्डवेयर है। इसलिए संस्कृति सभ्यता दोनों मिला के पूर्ण संस्कृति अर्थ में हम समझ पाएंगे। और भारतीय अवधारणा में भारतीय संस्कृति को और आगे हम देखते हैं तो पुनर्जन्म की बात आती है। पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है कि आज दुनिया को मानना पड़ रहा है। पुनर्जन्म के विषय में मैं समझता हूं भारत की सारे मान्यताओं में, सारे दर्शनों में पुनर्जन्म की कल्पना है। और आज जीवन में ऐसे अनुभव हो रहे हैं। हम तो एक महाभारत का उदाहरण, धृतराष्ट्र ने जब 100 पुत्र उनके मर गए तब भगवान कृष्ण से वो प्रश्न करते हैं, हे कृष्ण, हे वासुदेव, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो 100 पुत्र का मुझे लाश देखना पड़ रहा है, मेरे सामने मेरे रहते हुए 100 पुत्र मेरे समाप्त हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, ये 50 जन्म से पहले धृतराष्ट्र के 50 जन्म, 50 वर्ष नहीं, 50 जन्म पूर्व जो तुमने अपराध किया था, जो पाप किया था, जो कर्म किया था, उसी का परिणाम है ये। तब वो पूछते हैं, ऐसा मैंने कौन सा अपराध किया था कृष्ण? तो भगवान कहते हैं, एक बार तुम उस समय 50 जन्म से पूर्व तुम एक व्याधि थे, शिकारी थे। तो शिकार के क्रम में तुमने किसी लोभ या किसी कारणवश एक वृक्ष के झुंड में तुमने आग लगाई, वो शिकार करने के चक्कर में, और उसमें उस वृक्ष में, उन वृक्षों में जो पक्षी रहते थे अपना घर बना करके, वहां छोटे छोटे बच्चे भी थे जो उड़ नहीं सकते थे। ऐसे छोटे छोटे पक्षियों का भी हत्या हुई। उस समय एक पक्षी ने वो व्याधि को श्राप दिया, जाओ तुम्हारे भी 100 पुत्र, उस पक्षी के परिवार रहा होगा 100, तो उसने श्राप दिया 100 पुत्र के तुम्हारे भी मृत्यु हो। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, हे भगवान, ये 100 पुत्र और 50 जन्म पहले, तो इतने वो 50 जन्मों के बीच में उससे पहले क्यों ये क्रम नहीं आया और 50 जन्म मुझे लेने पड़े इसके लिए? यह कर्म सिद्धांत आता है।
भारतीय अवधारणा में पुनर्जन्म, कर्म, पाप, पुण्य। तो वो पूछते हैं कि ये 50 जन्म, इतनी यात्रा लंबी क्यों करनी पड़ी? तब भगवान कृष्ण कहते हैं क्योंकि 100 पुत्रों का मृत्यु हो ऐसा श्राप था, तो 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए तो पुण्य चाहिए। तो उन 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए तुम्हें जो पुण्य चाहिए वो 50 जन्मों में तुमने इतने पुण्य कमाए, इतने अच्छे कार्य किए, जिससे इस जन्म में तुमने 100 पुत्र प्राप्त किए। कहते हैं ना हमारे यहां आशीर्वाद देते में 100 पुत्र हो, पुत्रवान भव, कहते हैं। तो 50 जन्म लग गए तुमको ये पुण्य कमाने में, और 50 जन्म में इतना पुण्य उन्होंने संचय कर लिया। और उसके बाद जो कर्म बंधन था, जो पक्षियों को उन्होंने मतलब ऐसे निरपराध ऐसे पक्षियों को बिना कारण उन्होंने स्वार्थ के कारण जो मारा था, उसका कर्म वहां बंधन हुआ। 50 जन्म के बाद भी उस पाप के कारण, उस कर्म बंधन के कारण इस युग में जन्म लेना पड़ा, और 100 पुत्रों की मृत्यु तुम्हारे सामने, तुम्हारे आंखों से तुम्हें देखने की नौबत आई। यह भारतीय अवधारणा है, भारतीय चिति है, चिंतन है। और इस हमारी भारतीय अवधारणा पाप पुण्य, पुण्य और कर्म का बंधन और पुण्य का फल, तो वो कभी छोड़ता नहीं है। आप सभी गीता भी पढ़े होंगे, बहुत जगह इसका प्रमाण मिलता है पुनर्जन्म का। जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है, जब अर्जुन विलाप करते हैं, तब भगवान कृष्ण कहते हैं, जब अभिमन्यु से उनको मिलवाते हैं, तब वो कहते हैं क्यों रो रहे हो, क्या हुआ? बोले मेरा पुत्र तू चला गया। बोले कैसा? पिछले जन्म में तो मैं आपका पिता था, अभी मैं आप मेरे पिता हो। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आते हैं। और पश्चिम के विज्ञान को ये बड़ी चुनौती हुई। तो अब वो तो रिसर्च करेंगे, लेबोरेटरी में रिपोर्ट निकलेगा तभी उसको मान्यता देंगे, क्योंकि उसका रिपोर्ट कैसे निकालेंगे? जब आज चाहे अमेरिका, दुनिया में कितनी विचारधारा हैं, चाहे पारसी कम्युनिटी हो, चाहे रेड इंडियन हो, उन सब में अभी पुनर्जन्म की अवधारणा को वो लोगों ने स्वीकार करने लगे। जहां तक इस्लाम में भी इसको धीरे धीरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्वीकार करने की स्थिति में है, क्योंकि प्रैक्टिकल उसकी अनुभूति भी हो रही है। कई केसेस हैं, सैकड़ों केस हैं कि कहाँ उसका जन्म हुआ, वो बच्चे ने फिर बताया। अभी लेटेस्ट में भी कई उदाहरण आए। एक कुछ वर्ष पहले गांधीनगर का एक किस्सा था। तो अब हमारे यहां 16 संस्कार दिए हैं। 16 संस्कार भारतीय परंपरा में सभी के लिए हैं। तो एक नैरेटिव सेट किया कि गुरुकुल यानी ब्राह्मणों का और संस्कार यानी ब्राह्मणों का। यह भी एक समाज में नैरेटिव जानबूझ के लोगों ने सेट किया। लेकिन आज देश भर में, मतलब यदि धर्मपाल जी का इतिहास उठा के देखते हैं तो 27% यहाँ कलाओं को शिक्षा देने वाले आचार्य तथाकथित आज एससी समाज के हैं। लेकिन वो दुष्प्रचार कर दिया उसका। इसलिए हिंदू अध्ययन केंद्र के माध्यम से हमें भारतीय ज्ञान परंपरा को ठीक से समझना पड़ेगा। पहले वैचारिक स्पष्टता होना आवश्यक है। तो हमारे यहाँ 16 संस्कारों में ऐसे 48-40 कई सारे संस्कार हैं, परंतु प्रमुख रूप से आप सभी ने भी 16 संस्कार के विषय में अवश्य ही सुना होगा। तो हमारे शास्त्रीय हिसाब से सर्वप्रथम गर्भ संस्कार, ठीक है। उससे पहले अगर हम जाते हैं तो विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में हमारी ग्रह शांति होती है, और उससे पहले कुंडली मिलाने की विधा है। विवाह भी हमारे यहाँ 8 प्रकार के हैं। राक्षसी विवाह, गांधर्व विवाह, जिसको लव मैरिज कहते हैं, गांधर्व विवाह, और फिर वैदिक विवाह इत्यादि। तो जब विवाह संस्कार से पूर्व कुंडली मिलाते हैं, आज वो मैंने कल परसों एक न्यूज पढ़ रहा था
कि कहीं एक बड़े यूनिवर्सिटी में इसके कॉन्फ्रेंस हुई कि आज जो विवाह के समय में जो नाड़ी दोष होता है, नाड़ी दोष के अंदर जो आने वाली पीढ़ियों में जो ह्रास हो रहा है वो बहुत खतरनाक है। पूरा साइंटिफिक ज्योतिष क्या, मैथमेटिक्स है, गणित है, इतना बड़ा साइंस, ज्योतिष साइंस, लेकिन आज उसको एक हंसे में धकेल दिया गया है। तो विवाह के समय में जो कुंडली मिलान करते हैं, यदि नाड़ी दोष होता है तो संतान उत्पत्ति में बड़ा कष्ट होता है, और वह साइंटिफिक है। सगोत्र में विवाह करने से भी आज पारसी समाज का उदाहरण हमारे पास ज्वलंत है। सगोत्र में विवाह करने का परिणाम पारसी समुदाय आज कहां से कहां पहुंच गया, किस स्थिति में है। सगोत्र में, यानी शास्त्रकारों ने कहा सगोत्र में विवाह करना वह भी एक भाई बहन का विवाह जैसा हुआ, और आज मेडिकल साइंस भी उसको मान रहा है। तो उसको हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। तो उसके बाद यदि उसमें कोई दोष रह जाता है, अवश्य ही कुछ ना कुछ छोटा मोटा आगे पीछे रहता है, लेकिन प्रमुख चीज जो कॉम्प्रोमाइज करने योग्य नहीं है कुंडली मिलान में, तो वह नाड़ी दोष है और सगोत्र विवाह है, उसका परित्याग करना चाहिए। और उसका परिणाम हम समाज में देख ही रहे हैं। आज निस्तेज बच्चा जन्म से वो कुछ ना कुछ समस्या, फिजिकल समस्या नहीं तो मेंटली समस्या, ये साइंटिफिक है। उसी क्रम में गर्भाधान संस्कार दिया, तो गर्भाधान संस्कार, किसी की कुंडली के विषय में चर्चा हो रही थी, तो वास्तविक कुंडली निकालना है तो क्या उसकी शास्त्रीय विधा है। तो गर्भाधान का टाइम, गर्भ में जो पहली बार मूवमेंट करता है उसका टाइम और जन्म का टाइम, ये तीनों मिलाकर के यदि उसकी वास्तविक प्रेडिक्शन किया जाए 100%, उसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। प्रेडिक्शन करने वाला सही विद्वान होना चाहिए, तो उसकी वास्तविक कुंडली निकलती है। नहीं तो ट्विंस बच्चे जन्म लेते हैं, एक ही समय में होते हैं प्रायः, तो एक ही समय में होते हैं, तब वो समान कुंडली निकलती है। तो दोनों का स्वभाव देखो तो पूरा विपरीत रहता है। दो बच्चे जन्म लेते हैं, भले लड़के लड़के लें या लड़के लड़की लें या मतलब बेटी बेटी लें, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर मिलता है बहुत सी जगह। लेकिन उसका सूक्ष्म विज्ञान क्या, वहां ज्योतिष को गाली देने जाते हैं, तुम्हारो कुंडली तो एक अच्छे नहीं बोले, बने प्रोडिक्शन सेम आवे, कई रीते आवे। वहां मनुष्यों ने कहा, एक सत्य घटना को मैं उद्धृत करते हुए आपको उस उदाहरण के माध्यम से बताना चाहूंगा। ये इलाहाबाद, अभी का प्रयागराज के कोर्ट में एक केस ऐसा रजिस्टर हुआ। एक पिता के 2 पुत्र थे और उन दोनों पुत्र को उन्होंने एक विल लिखा। विल जानते हैं ना, वारस, मतलब विल लिखे थे, वृद्ध थे। तो अचानक एक दिन उनका देहांत हो गया। जब बंटवारे का विषय आया, प्रश्न आया, तब वो विषय गंभीर हो गया कि उन्होंने लिखा था बड़े बेटे को इतनी संपत्ति देना, बड़े वाले को थोड़ा ज्यादा देना, छोटे वाले को थोड़ा इतना कम देना, करके उन्होंने पूरा बाइफरकेशन किया था। तो निश्चय रूप से कि उसमें हम मानते हैं कि कितने मिनट पहले, 2 मिनट मिनिमम तो फर्क रहता ही है। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का भी अंतर रहता है। 2 मिनट से कम प्राय अंतर नहीं रहता है। तो बड़ा जो 2 मिनट पहले जन्मा उसको बड़ा मानते हैं सामान्य रूप से। उज्जैन में सांदीपनी गुरुकुल है, उस गुरुकुल के आचार्य थे आज राजाराम गुरु जी। उसमें जो हम 2 मिनट बाद में जन्म लेने वाला जो बालक है वो संपर्क में था कि ऐसे विषय को अनौपचारिक रूप से चर्चा हो रही थी। तब गुरुजी ने बोला, ज्येष्ठ पुत्र तो तू है। नहीं गुरुजी, मैं तो 2 मिनट बाद में जन्मा था। अरे वही तो बता रहा हूं, इसलिए ज्येष्ठ पुत्र तू है। परामर्श हुआ, कुछ विद्वान बैठे, तो गर्भाधान के समय में उन्होंने एक अद्भुत विज्ञान लाए और बताया
कि जैसे एक उदाहरण दिया कि एक पाइप है, इस पाइप में उतनी जगह है कि एक चने का दाना पास हो सकता है। तो ये 2 चने के दाने डालो उस पाइप में, जब उसको वापस इसे निकालो तो बाद में डाला हुआ चना पहले आएगा या पहले डाला हुआ आएगा? फिर इसके ऊपर लीगल डिबेट हुआ। कई बार हम देखते हैं ना कि ट्विंस में एक बेटा और एक बेटी होती है, तो कई सारे विज्ञान हैं, उसमें जो एक प्रचलित विज्ञान है जो शास्त्रीय है, सम दिनों में अगर संसर्ग होता है पति पत्नी का तो पुत्र होने की संभावना ज्यादा होते हैं, विषम दिन में होता है तो पुत्र की संभावना होती है। तो सम दिन में संसर्ग से पुत्र हुआ उस रजवीर्य से, और फिर कभी एक विषम दिन में संसर्ग हुआ तो पुत्री हुई अथवा पहले पुत्री हुई, जो भी उसी क्रम से सम और विषम का मैथमेटिक्स उन्होंने समझाया। तो पहले जन्म लेने वाला जो पुत्र है वो कनिष्ठ है, यानी छोटा है, और आप सभी भी अपने जीवन में इसका अनुभव कर सकते हैं कि जो आज नॉर्मल डिलीवरी में पहला जो संतान जन्म लेता है वो थोड़ा बल्कि कमजोर रहता है सेकंड से अपेक्षा। उसका कारण क्या? राजाओं की परंपरा में देखेंगे ज्येष्ठ पुत्र का राज्याभिषेक होता था, क्योंकि पिता के सारे गुण लक्षण पुण्य उसके सारे ज्येष्ठ पुत्र में आती। वो साइंस है, वो आपके हमारे हाथ का विषय नहीं, वो ईश्वर की रचना है, प्रकृति की रचना है। तो वो आते थे, इसलिए वो राजा के योग्य होता था, इसलिए उसको राज्याभिषेक किया जाता था। तब जब ट्विंस जन्म लेते हैं तो जो पहले पुत्र में होने वाले जो लक्षण वो ट्विंस बच्चों में बाद में जो बच्चा आता है उसमें वो सारे लक्षण दिखते हैं, पहले आने वाले में नहीं दिखते हैं। ये साइंस है, ये विज्ञान है। और कुंडली फर्क कैसे आएगी? वो लग्न एक हो सकता है, नक्षत्र देखिए, नक्षत्र से गणना कीजिए, नक्षत्र में अलग होगा। अलाई मेष राशि में हुआ, यानी बस वो दोनों मेष राशि में, फिर नक्षत्र के 4 चरण में वो चरण का विभाजन, वो मैथ सूक्ष्म मैथ, ज्यादा सूक्ष्म भी नहीं है, बेसिक मैथमेटिक्स है, करेंगे। उसमें नक्षत्र अलग आएंगे, चरण अलग आएंगे, उसके स्वामी अलग होंगे, तो वहां कुंडली और स्वभाव में तुरंत स्पष्ट दिखेगा। और यदि ऐसे जागरूक माता पिता हैं तो गर्भाधान के समय भी, उस समय का भी वो गणना कर सकते हैं, फर्स्ट मूवमेंट का भी हम अनुमान लगा सकते हैं। कहते हैं ना आजकल के डॉक्टर बोलते हैं 3.5 महीने में प्राण आता है। भारतीय साइंस ऐसा नहीं कहता। भारतीय साइंस तो गर्भाधान के शुक्र में जीव होते तभी तो गर्भाधान होता है। हमारा स्पष्ट है, हम कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन आने वाले कुछ वर्षों के बाद कोई साइंटिस्ट रिसर्च करेगा, नहीं वो शुक्राणु पहले से जीव होता है, तब हम लोग मानेंगे, क्योंकि वो सर्टिफिकेट आएगा तभी मानेंगे। आज सर्टिफिकेट का भी एक बड़ा गेम है। भारतीय आयुर्वेद इस सृष्टि में जिन्होंने एलोपैथी को जन्म दिया, मैं उनकी टीका नहीं कर रहा हूं, उन्होंने जो अच्छा काम किए वो साधुवाद है, परंतु जो एक षड्यंत्र पूर्वक एक आक्रमण चल रहा है ना, उसका हमें विरोध है। और जो जिन मनुष्यों ने 7 पीढ़ियों तक 7 जनरेशन तक रिसर्च करके समाधि में बैठ के जो ग्रंथ लिख सकते हैं, ऐसा आज के किसमें इतनी क्षमता है? जब भारतीय व्यवस्था में, भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद जैसे चुरुक ससुरुक और ऐसे अष्टांग हृदय लिखने वाले बागभट जैसे ऋषि हुए, उस समय तो वहां पर कपड़े पहनने के भी ढंग नहीं थे। एलोपैथी का जन्म कब हुआ? अब सोच सकते हैं। भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा में कहते हैं कि जिसे बेसिक चीज दही, मध और नींबू, इसको कभी गर्म करना नहीं चाहिए, गर्म करके नहीं खाना चाहिए। ये पॉइजन, मतलब एक जहर का काम करता है। उसका प्रभाव हो सकता है सूक्ष्म हो, स्थूल हो। हम पानी पीते हैं ना, पानी का प्रभाव, पानी का स्थूल स्वरूप है वो आपका यूरिन के रूप में निकलता है, और उसका मध्य स्वरूप है
वो रक्त के कुछ कोश रक्त में बनने में सहाय करता है, और वो पानी का जो सूक्ष्म कोश है वो आपके मन का निर्माण करता है। ऐसे ही भोजन की व्यवस्था है, जो हम ग्रहण करते हैं ना, उसका प्रभाव मन, आत्मा, प्राण तक उसका प्रभाव है। इसलिए जहां कहीं भी जो कुछ भी मिल जाए और खड़े होकर के बुफे सिस्टम खाना, विचार करना चाहिए। हम भारतीय लोग हैं, भारतीय संस्कृति की हम चर्चा करने बैठे हैं, तो व्यवस्थापकों को भी विचार करना चाहिए और आप जैसे विद्वानों को भी विचार करना चाहिए, हमें बुफे में खाना है या बैठ के भोजन करना चाहिए। भोजन का बहुत बड़ा विज्ञान है। भोजन जैसा मन जैसा अन्न वैसा मन, कहते हैं ना, ये सूक्ष्म उसका प्रभाव है। आपके एक पानी, बोतल का पानी पिए या कोई भी पानी पीते हैं, उससे आपके मन को प्रभाव करता है, क्योंकि मन बनता है पानी से। तो ये भारतीय संस्कृति, सभ्यता और हमारा आचार, हमारी जीवन शैली, हमारा साइंटिफिक जीवन। और दूसरा उदाहरण हम देते हैं कि जैसे अगर ये पुनर्जन्म, अब कर्मवाद में आते हम, पुनर्जन्म, जब एक ट्विंस बच्चे जन्म लेते हैं, प्रोसेसिंग समान एक, मटेरियल भी एक, फिर भी एक बच्चा रंग होता है, एक राजा होता है। एक का स्वभाव भी पूर्व पश्चिम, मतलब पूरा अलग अलग स्वभाव, नेचर, प्रकृति, काम करने का तरीका, रोग, उसके शरीर में होने वाले रोग इत्यादि सब कुछ अलग क्यों होता है, बताइए। यदि कर्म का सिद्धांत हम नहीं मानते हैं, एक मटेरियल, एक प्रोसेस, वही माँ बाप, प्रोसेस वही, और एक ही समय में जन्म लेने वाले, तो भी स्वभाव में अंतर क्यों आता है? दैट इज कर्मा। वहां कर्म सिद्धांत लागू होता है। उसने पूर्व अनेक जन्मों के कर्मों को जो संचित किया है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा, उसके अनुसार उसका जन्म होगा। इसलिए भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा में पुनर्जन्म यानी पुनः, यानी फिर पहले भी कभी हुआ था, वो उसको प्रमाणित करता है। पुनः कब होता है, फिर से कब होता है? जब पहले कब हुआ था, मैं फिर से सूरत यूनिवर्सिटी में आया, पहले कभी आया था, तब पुनः हुआ। इसलिए पुनर्जन्म, पुण्य, पाप, कर्म सिद्धांत है ना, तो ये भारतीय संस्कृति की मुख्य अधिष्ठान है, हमारी अवधारणाएं हैं। इसलिए ऐसी स्पष्टता के साथ हम आगे समाज के तमाम शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन करेंगे, और कहीं भी इस विषय के लिए और आपको जानने की का विषय होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो विषय है, टाइटल हमारे शीर्षक हैं, वो एक शीर्षक में पूरा दिन भर भी चर्चा करेंगे तो कुछ नवनीत निकाल पाएंगे, परंतु ये आप सभी के समक्ष एक निश्चित समय की मर्यादा में और कुछ एक सैद्धांतिक विषय आपके सामने रखने के लिए निर्देशन था। तो समय की मर्यादा में जितना रख पाया, और अभी तक जितने उदाहरण और मेरे कथन में कहीं भी कोई त्रुटि हो तो वो शास्त्रीय या मेरे सिखाने वाले शास्त्रज्ञ ऐसे गुरुओं का न समझते हुए, उन त्रुटि में मेरी व्यक्तिगत त्रुटि, गलती हो तो ऐसा समझते हुए मुझे क्षमा करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जयतु संस्कृतम। खूब खूब धन्यवाद माननीय आचार्य दीप जी।